Hello everyone. So in today's class we are going to discuss about some more phylums. ठीक है. Now we are starting by discussing the phylum Echinodermata. ठीक है. Now these are the spiny skinned animals. ठीक है. These are the spiny skinned animals. ठीक है. The grades of organization is the organ system level. ठीक है. If we talk about the grades of organization, it is of the organ system level. ठीक है. Now the symmetry they have is the radial symmetry. When they grow old or when they become the adults, they have the radial symmetry, and at the larva stage they exhibit the bilateral symmetry. ठीक है. Now the coelom की जब हम बात करें, they have a true coelom present. ठीक है. They have a true coelom present. And if we talk about the habit and the habitat, they are exclusively marine. They are exclusively marine. ठीक है. The digestive system is, they have complete digestive system. ठीक है. And मतलब इनके पास माउथ और एनस क्या है, दोनों है. ओके. जो वेंट्रल साइड है, they have the mouth, वेंट्रल साइड पे दे हैव द माउथ एंड डॉर्सल साइड पे दे हैव द एनस. डॉर्सल मतलब पीछे वाली बैक साइड पे, और वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड पे क्या है इनका, माउथ है. ठीक है. माउथ और एनस. ओके. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. The respiration occurs through the structures that are known as the dermal ब्रेंकी. ठीक है. These are known as the dermal ब्रेंकी, जिसका मतलब क्या होता है, स्किन गिल्स. ओके. जिसका मतलब क्या होता है, स्किन गिल्स. यू कैन सी दिस इज द स्किन ऑफ द स्टारफिश. ठीक है. एंड द गिल्स आर प्रेजेंट ऑन इट. ओके. या इसको अपन क्या बोलते हैं, पैप्यूले. इसको अपन और क्या बोलते हैं, papulae. Okay. And the tube feet. There are two these respiratory structures, that is the dermal bronchi, that is the skin gills, or the papulae, and the tube feet. ठीक है. These are the tube feet. ठीक है. ये क्या होता है, respiratory structures होते हैं which helps in the exchange of the gases. ठीक है. The circulatory system is again of the open type. ठीक है. It is again of the open type. Okay. Now the reproduction part. ठीक है. These are again dioecious animals, means the sexes are separate. ठीक है. These are the dioecious animals, means the sexes are separate, and they performs या they have the presence of the external fertilizations. ठीक है. They have the presence of the external fertilization, means the fertilization takes place outside the body of the organism. ठीक है. Now the development is indirect, मतलब they have the larva stage. They have the larva stage. ठीक है. And they have ciliated free swimming लार्वा स्टेज. ठीक है. इनडायरेक्ट है, मतलब यही है कि भाई लार्वा स्टेज प्रेजेंट, और लार्वा स्टेज भी कैसा प्रेजेंट है, सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होता है. ठीक है. किसमें, फाइलम एकाइनोडर्मेटा में. ओके. नाउ द यूनिक फीचर इज दैट they have an endoskeleton of the calcareous ऑसिकल्स. ठीक है. एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है और जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. प्रीवियस फाइलम में इट वाज द एक्सोस्केलेटन, नाउ इट इज एंडोस्केलेटन. ओके. नाउ दे हैव द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्केलेटन, ओके, एज द कैल्केरियस ऑसिकल्स. ठीक है. दे हैव द कैल्केरियस ऑसिकल्स which supports the body of this echinodermatas. ठीक है. The head is absent in them. ठीक है. The head is absent in them. Okay. And the water vascular system is present. The water vascular system is present. Okay. This is basically the water vascular system. ठीक है. The excretory system is absent. इनमें क्या होता है, excretory system present नहीं होता. ठीक है. इनमें excretory system क्या नहीं होता, present नहीं होता. Okay. Now the unique feature is this water vascular system only. ठीक है. The unique feature is the water vascular system. ठीक है. Ambulacral. ठीक है. Water vascular system is here, it is also known as the ambulacral system. ठीक है.
Now in this system the water enters through a porous plate called the madreporite. ठीक है, porous plate called the madreporite. यहां से क्या कर रहा है, वाटर इस सिस्टम में एंटर कर रहा है. ठीक है, एंड रीचेस द रेडिएटिंग कैनाल्स. ठीक है, एंड रीचेस द रेडिएटिंग कैनाल्स. ठीक है, एंड ट्यूब फीट, एंड द ट्यूब फीट, ये जो हमने देखे थे. ठीक है, एंड द ट्यूब फीट. ठीक है, इट्स फंक्शंस आर लोकोमोशन. इस पूरे वाटर वैस्कुलर सिस्टम या इस एम्ब्यूलेक्युलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, इट्स फंक्शंस आर लोकोमोशन. ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब गैसेस के एक्सचेंज में भी काम करती है ये. ओके, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये इन सारे में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, यहाँ से वहाँ चीज मतलब मूव करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, रेस्पिरेशन में गैसेस को यहाँ वहाँ पहुँचाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द फूड एंड द एक्सक्रीशन में भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ठीक है, now the examples are the asterias, that is the starfish. ठीक है, this is again important. ठीक है, sea lily is again important, that is the antedon. Okay, this is important. Echinus is the sea urchin, this you should also remember. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ examples हो जाएंगे जो आपको याद रहे. this is also you know quite a name to remember. Cucumeria. ठीक है, this is also known as the sea cucumber. Okay, so these are some examples of the phylum Echinodermata. Okay, the next phylum is the phylum Hemichordata. ठीक है, the next phylum is the phylum Hemichordata. ठीक है, the Hemichordata was earlier considered as a subphylum of the Chordata. ठीक है, it was earlier considered as the subphylum of the Chordata like chordates. ठीक है, it has pharyngeal gill slits. ठीक है, it has pharyngeal gill slits, ये respiration के लिए. ठीक है, now the grades of organization, they have a organ system level of the grade of organization. ठीक है, symmetry is bilateral, they have true coelom present in them. Okay, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब मेराइन एनवायरनमेंट में ही मिलेंगे आपको. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इज कंप्लीट, मींस दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ द माउथ एंड अ एनस. ठीक है, दे हैव प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड एनस. ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव गिल्स प्रेजेंट. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव गिल्स प्रेजेंट. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. इनके पास क्या प्रेजेंट है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट है. ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन इज ऑफ डाइशियस टाइप, मतलब दोनों ही सेक्सेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नाउ द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, now the unique features, if we talk about the unique features, so they have a worm like cylindrical body. worms जो हमने देखे थे, ठीक है, अभी अर्थ वर्म को इमेजिन कर लो तो उनकी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी. तो इनकी भी क्या होती है, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी. इनकी भी क्या होती है, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज फॉर्म्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. ये जो स्ट्रक्चर है इनका, जो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस वन, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोबोसिस. ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोबोसिस. ठीक है, द नेक्स्ट इज द कॉलर. ओके, एंड द थर्ड इज द लॉन्ग ट्रंक. ठीक है,
एक बार आप ये स्ट्रक्चर नोट कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी एक बार इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखा, ठीक है। ये जो आगे वाला पार्ट है, ओके, ये जो आगे वाला पार्ट है, दिस इज द प्रोबोसिस, ठीक है, दिस इज द प्रोबोसिस, ठीक है। ये जो मिडल, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द कॉलर पोर्शन, ठीक है, दिस इज द कॉलर पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है, दिस इज बेसिकली द कॉलर पोर्शन, ठीक है, एंड इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, दिस मच स्ट्रक्चर इज द ट्रंक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक प्रोबोसिस हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर कॉलर हो गया, एंड बाकी का जो भी बचा वो क्या है, ट्रंक है, ठीक है। नाउ द कॉलर बेयर्स अ स्टोमोकोड, ठीक है, कॉलर बेयर्स अ स्टोमोकोड, ठीक है, जो कि क्या होता है, नोटोकॉर्ड जैसा ही होता है, ठीक है। द स्टोमोकॉर्ड इज सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, एक वेस्टिजियल, एक बचा हुआ स्ट्रक्चर है सिर्फ, है ना। रूडिमेंट्री मतलब बचा हुआ है, जो रह गया है ना। तो ये क्या होता है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, ठीक है। एंड द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड, द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड। इसमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है। नाउ दीज आर अगेन द एग्जाम्पल्स, राइट। सो हेमिकॉर्डेटा वॉज वेरी स्मॉल, है ना, उसमें एज सच कुछ ज्यादा था नहीं। एनीवे, नेक्स्ट इज द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, नेक्स्ट इज द फाइलम कॉर्डेटा। नाउ इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स, ये हमने पढ़ी थी। हेमिकॉर्डेट्स क्या होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, और कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, ठीक है, इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद द notochords, a dorsal tubular nerve cord and a pharyngeal gill slits, ठीक है, and a pharyngeal gill slits। इनके पास क्या क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी सबसे पहले तो, ठीक है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, ओके, और फिर क्या होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब और क्या क्या है, नोटोकॉर्ड, बेसिकली हमने नोटोकॉर्ड के बारे में पहले भी एक इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली ये क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड इज बेसिकली अ फ्लेक्सिबल रॉड, ठीक है, इट इज बेसिकली अ फ्लेक्सिबल रॉड, sorry, located in the mid dorsal line between the alimentary canal and the nerve cord in the embryo, ठीक है। नोटोकॉर्ड हमने देखा था कि इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में, ठीक है। दिस इज द नोटोकॉर्ड, है ना, दिस इज द नोटोकॉर्ड एंड दिस इज द नर्व कॉर्ड। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो स्कीमेटिकली जल्दी।
Okay, now it includes now we know the notochord is a flexible rod, right? ये वाला structure आपने अच्छे से बना लिया है, ठीक है, with the nerve cord present, ठीक है, with the gill slits present and with the notochord present, ठीक है. एक जगह आई गेस मैंने आगे ये बोल दिया था सबकॉन्शियसली, आई गेस गिल स्लिट्स के लिए बात कह दी थी कि इट हेल्प्स इन दिस रेस्पिरेशन. गिल स्लिट्स डोंट हेल्प इन दिस रेस्पिरेशन, गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. आई गेस मैंने शायद कहीं गिल स्लिट्स में भी बोला है. तो एनीवे द फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं दे हेल्प इन द फिल्टर फीडिंग, ठीक है. फिल्टर फीडिंग मतलब कि भाई एक साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स खाने को एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी अनडिजायरेबल पार्ट्स होते हैं वो उसको वापस क्या कर देते हैं, बाहर थ्रो कर देते हैं, ठीक है. एनीवे अगर बोला है तो भी ठीक, और अगर नहीं बोला है तो दिस इज बेसिकली द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है. नाउ द फाइलम कॉर्डेटा वर्सेस द नॉन कॉर्डेट, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है. जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट, एंड इन दिस द नॉन कॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है. इन कॉर्डेट्स द सीएनएस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल, ठीक है. यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, डोर्सली प्रेजेंट है, हॉलो एंड सिंगल है, ठीक है. यहाँ पे वेंट्रली प्रेजेंट है, सॉलिड है और डबल है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, डबल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, सिंगल है, डोर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है, ठीक है. द फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. नाउ इन नॉन कॉर्डेट्स दे आर एब्सेंट, ठीक है. दे हैव अ वेंट्रल हार्ट, they have a dorsal heart if present, okay, and they have a post anal part, that is tail, right. Tail is present in chordates and these non chordates do not have tail, ठीक है. tail इनमें क्या होती है, absent होती है. you can just take a screenshot or write it down, right, you can just write it down. अगर आपको ये डायग्राम भी ठीक लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं. इट हैज़ अ माउथ, इट हैज़ अ एनस, ठीक है. जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं इसको बना लो, पोस्ट एनल टेल बना लो, ये सब बना सकते हो आप, है ना. चले आगे. ओके, नाउ द फाइलम कॉर्डेटा हैज 3 सब फाइलम्स, ठीक है. फाइलम कॉर्डेटा में क्या है, 3 सब फाइलम्स भी है. फर्स्ट वन इज द यूरोकॉर्डेटा, दैट इज द ट्यूनिकाटा. सेकेंड वन इज द सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज द वर्टिब्रेटा, ठीक है. द यूरोकॉर्डेटा, द सिफेलोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा, ठीक है. नाउ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द larval stage, only present in the larval stage, ठीक है. The body is covered by test made up of tunicin, ठीक है. ये जो this is basically a covering, ठीक है. और tunicin क्या होता है, एक मटेरियल होता है, उससे क्या बनी हुई होती है, ये सारी इसकी बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है. Now these are exclusively मराइन, ठीक है. दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है. ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मराइन एनवायरनमेंट में ही मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मराइन एनवायरनमेंट में ही क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड दीज आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट, दीज आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है. नाउ इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एस्कीडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम, ठीक है. एस्कीडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम. तो बेसिकली इनमें कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ नोटोकॉर्ड सिर्फ एक लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, यूरोकॉर्डेट्स में, ठीक है. और इनकी जो आउटर कवरिंग है इट इज टेस्ट बेसिकली, ठीक है. इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेस्ट बोल रहे हैं. इट इज द आउटर बॉडी कवरिंग, ठीक है. और ये किससे बनी हुई है, ट्यूनिसिन से. ये किससे बनी हुई है, ट्यूनिसिन से. ये बेसिकली एक मटेरियल होता है, ये सेल्यूलोज लाइक मटेरियल होता है, ठीक है. इसको अपन एनिमल किंगडम का सेल्यूलोज बोल सकते हैं, ठीक है. मतलब इतना ज्यादा डिटेल काम करनी है, बट बेसिकली इट इज अ मटेरियल, ओके, जो कि क्या है, सेल्यूलोज जैसा होता है, ओके.
तो इसको अपन एनिमल किंगडम का सेल्यूलोज कंसिडर कर सकते हो। तो ये टेस्ट जो होता है, ये जो बॉडी कवरिंग होती है वो इस ट्यूनिसिन से बनी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड दीज आर हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है। Now the notochord in the subphylum Cephalochordata, first was Urochordata, next is the Cephalochordata, ठीक है। The notochord from head to tail region and is persistent throughout the life, ठीक है। पहले वाले में क्या थी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट थी, अब यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है एंड फ्रॉम द हेड टू द टेल रीजन, ठीक है। Now these have a fish-like body. These have a fish-like body and these are also exclusively marine. पर यहाँ पे क्या आता है, sexes क्या है, separate है। यूरोकॉर्डेटा को जब हमने देखा था तो sexes क्या थे, सेम ऑर्गेनिजम्स में थे, हार्मेफ्रोडाइट्स थे ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, sexes are सेपरेट, ठीक है। तो हाउ आर यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स डिफरेंट टू ईच अदर, उनमें नोटोकॉर्ड जो थी वो क्या थी, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट थी, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो थी वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट थी, यहाँ पे हेड टू टेल रीजन पूरे में प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पे सिर्फ उस लार्वल स्टेज के लिए प्रेजेंट होती है, यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, ओके। अगेन दे हैव अ फिश लाइक, दीज हैव अ फिश लाइक बॉडी एंड दे हैव अ बॉडी कवरिंग दैट इज मेड अप ऑफ tunicin, okay। Now these are exclusively marine, they are also exclusively marine, okay। And in this the sexes are separate and in that the sexes are not separate, these are present in the same body, okay। The examples are the branchiostoma, okay, the branchiostoma। Now the subphylum Vertebrata, ठीक है। Now they possess notochord during the embryonic period. इनके पास भी जो notochord है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है during the embryonic period, ठीक है। The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults, ठीक है। तो यहाँ पे जो notochord होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बड़े होके हमारी क्या बन जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। The ventral muscular heart, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट अपने आप से रिजेंबल हो रही है चीजें। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, किडनीज होती है इनके एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। याद आ रहा है कुछ, हम ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स ही है ना, तो आप मतलब इनको रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब फिन्स और लिम्स, हम में फिन्स नहीं है, हम में लिम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम वर्टिब्रेटा, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, राइट। ये तो हम ही हैं। दीज पोजेस द नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बड़े होते होते वो किससे एक्सचेंज हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। वेंट्रल हार्ट होता है, किडनीज होती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस, ओके। अब वर्टिब्रेटा को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ the vertebrata is further divided into two types, ठीक है। the agnatha or the jawless या the gnathostomata, ठीक है, जिनमें क्या है, jaws present है, ठीक है। now jawless में कौन से हो जाएंगे, कौन सी क्लास हो जाएगी, cyclostomata, ठीक है। cyclostomata is the jawless वाली क्लास, ठीक है। अब जो ये ग्नैथोस्टोमेटा वाले पोर्शन है, मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट बियर्स द जॉस, ठीक है, वो भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, दो में। वो भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, दो में। दैट इज द सुपर क्लास स्पीसीज एंड द सुपर क्लास टेट्रोपोडा, ठीक है। द species this bear the fins and the tetrapoda bears the limbs, ठीक है। अब जो फिन्स बेयरिंग है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ड्रीकाइथिस, ठीक है, और ऑस्टिकाइथिस, ठीक है। द कॉन्ड्रीकाइथिस एंड द ऑस्ट्रिकाइथिस, ओके। एंड द सुपर क्लास टेट्रोपोडा हैज एम्फीबिया, reptiles, aves and the mammals, right। These are the classes present,
ठीक है, इस सब का एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है जल्दी से करो। ओके, ना द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इस क्लास के जो भी ऑर्गेनिजम्स है दीज आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये क्या है, सभी फिशेस पे क्या है, कहीं ना कहीं चिपके हुए होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है। दे हैव अ एलोंगेटेड बॉडी, मतलब ये तो खुद ही थे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ओके, ये इतना बड़ा आप देखो ये, ठीक है। नाउ दे हैव अ एलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक है। विदाउट स्केल्स, कोई स्केल नहीं, खुरदुरी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। एंड पेयर्ड फिन्स, इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, ठीक है। 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो थे वो किसके लिए यूजफुल थे, फिल्टर फीडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, ठीक है। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ है विदाउट द जॉज, इनमें जॉज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अ कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्रेनियम, क्रेनियम जो हमारा हेड होता है, आगे भी हम जाके पढ़ेंगे ये क्रेनियम और ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये जो स्कल है या वर्टिब्रल कॉलम है, इनमें क्या है, बोन से नहीं बना होता हमारी तरह, इट इज कार्टिलेजिनस, ठीक है। द सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप, द सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप, ठीक है। एंड दे आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। मराइन होती है लेकिन फ्रेश वाटर में भी क्या करती है, माइग्रेट करती है, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशियंस, ठीक है। ये क्या करती हैं, मर जाती हैं और उसके बाद में ये जो लार्वास हैं, ठीक है, ये जो बनते हैं, दे रिटर्न टू द ओशियंस, ठीक है। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ में, ठीक है, ठीक। तो ये क्या करती है कि मराइन होती है जनरली लेकिन माइग्रेट करती है टू द फ्रेश वाटर, ठीक है। आफ्टर दे रिलीज देयर एग दे डाई, ठीक है। स्पॉनिंग इज बेसिकली एग देना, है ना। तो दे ले देयर एग्स, ओके, और उसके बाद दे डाई। अब इनके जो लार्वा आगे बनते हैं, ठीक है, वो जब अपने फॉर्म में वापस, एडल्ट फॉर्म में वापस आ जाते हैं तो दे रिटर्न टू द ओशियंस, ओके। नाउ द सुपर क्लास, जो पीसीज हमने देखा था उसकी जो सुपर क्लासेस थी, ठीक है, दो, दैट इज द कॉन्ड्रीकाइथिस एंड द ऑस्टिकाइथिस, ठीक है। ये जो कॉन्ड्रीकाइथिस होते हैं ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो I'd say कि how can I explain this word, I don't know, these are predaceous, ठीक है, and they have a cartilaginous endoskeleton। अगेन इनके पास क्या है, कोई बोन नहीं है, ठीक है। अगेन इनके पास क्या नहीं है, कोई बोन नहीं है। इनके पास भी जो इनका एंडोस्केलेटन है, जो सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। इनके पास भी क्या है, कार्टिलेजिनस सपोर्टिंग स्केलेटन है, ठीक है। नाउ दे हैव अ नोटोकॉर्ड दैट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। दे हैव अ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब खत्म नहीं हो जा रही है, ठीक है। नाउ sorry, and
these are marine and fresh water, and they also have a streamlined body. How do I explain this streamlined body? मतलब ये क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनलेसली, मतलब पानी में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. इट इज बेसिकली अ form of body which helps the organism to move quite easily in the body, मतलब frictionlessly. okay, now they have a bony endoskeleton. ठीक है, ये जो क्लास है इसमें क्या है, bony endoskeleton है, whereas the chondrocytes they have a cartilaginous endoskeleton. ठीक है, now these have a ventral mouth, front में mouth है, and a powerful jaw. ठीक है, they have a gill slits without operculum, मतलब गिल की कवरिंग के बिना इनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इनके पास क्या होता है, टर्मिनल माउथ. वेंट्रल माउथ मतलब फ्रंट में. ठीक है, इनके पास क्या है, टर्मिनल माउथ है. ठीक है, एंड दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विद operculum ऑन ईच साइड. यहाँ पे operculum एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, यू कैन सी हियर द वेंट्रल माउथ किसको बोल रहे हैं, ऑन द फ्रंट साइड, और टर्मिनल माउथ मतलब बॉडी के एंड पे जो ये माउथ है उसको बोल रहे हैं. ठीक है, ये दिस इज द वेंट्रल माउथ, दिस इज द टर्मिनल टाइप ऑफ माउथ. ओके, नाउ दीज हैव स्किन विद द प्लेकॉइड स्केल्स. ठीक है, ये जो फिशी स्केल्स होती है, इफ यू नो, okay, these are the placoid scales. okay, now these have skin with the placoid scales. The teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. ठीक है, इनके जो ये जो आप शार्क देख सकते हो, इनके जो टूथ हैं, ओके, वो भी क्या है, बिल्कुल ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड प्रेजेंट होते हैं, इस शेप के होते हैं, और क्या होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. ठीक है, नाउ दे हैव नो एयर ब्लैडर, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. ठीक है, एयर जनरली क्या करती है, बॉडी को ऊपर करके रखती है, लेकिन ये क्या है, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, तो इनको कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए. ओके, the scales here present are the cycloid in shape. ठीक है, they have a cycloid scales, the smooth scales. यहाँ पे आप placoid देखो और यहाँ पे cycloid देखो, कितना डिफरेंस है. ठीक है, and cycloid and the tenoid scale, these are somewhat spiny projections but this is basically smooth. और उसको अपन देखेंगे तो कितना शार्प दिख रहा है. ठीक है, तो they have the cycloid and the tenoid the scale. ठीक है, और इनके पास क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो मतलब अगर ये स्विम ना भी करे तो ये वहां पे रुकी भी रह सकती है, ये डूबेगी नहीं. ठीक है, नाउ these are the poikilotherms और the cold blooded animals. cold blooded या poikilotherms अपन क्या बोलते हैं कि जो अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को, जो थर्मो रेगुलेशन को नहीं परफॉर्म कर सकते, जो अपने बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख सकते. ठीक है, तो दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये अपने बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख सकते. ठीक है, दे हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. ठीक है, इनके पास क्या है, 1 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है. ओके, नाउ दिस ऑल्सो हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, दैट इज द 1 ऑरिकल एंड द 1 वेंट्रिकल. ओके, ये आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहो साथ में. ओके, नाउ इन दिस द सेक्सेस आर सेपरेट, द सेक्सेस आर सेपरेट. उसमें भी क्या है, सेक्सेस सेपरेट है. Now in this the males, the pelvic fins bears claspers. ठीक है, the pelvic fin bears the claspers. ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, these are the claspers. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या है, pelvic fins हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, here there is internal fertilization. ठीक है, here there is internal fertilization and there it is the external type of fertilization. Here the organisms are
विविपेरस एंड हेयर द ऑर्गेनिज्म इज ओविपेरस. ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है, यहाँ पे भी कोई लार्वा स्टेज नहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लासेस. ठीक है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, द ग्रेट वाइट शार्क, द डॉग फिश, है ना, द सॉ फिश. दीज यू कैन टेक अ, or you can just write it down or you can take a screenshot, whatever. Okay, चले आगे. And this is the example of this class, the Osteichthyes. Okay, the marine is the flying fish. You can see it looks like a flying fish. Okay, Exocoetus, hippocampus, that is the seahorse. Fresh water में that is the rohu fish. It is very famous, right? Catla या कटला, है ना, Clarias, मगुर, ये सब आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट, whatever you feel fine. Okay, aquarium में betta fish, that is the fighting fish, and the pterophyllum or the angel fish. Okay, चले आगे. Now the tetrapoda, okay, which includes us. Now first are the amphibia. ठीक है, amphibia का main character क्या होता है कि these are aquatic as well as the terrestrial organisms. ठीक है, these are aquatic as well as the terrestrial organisms. ठीक है, इनको breeding करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है. They need water for the breeding. Okay, now the body has a head and a trunk. Sorry, the body has a head and a trunk, or some have the tail also. ठीक है, amphibians कौन से होते हैं, जो aquatic और terrestrial दोनों में रहते हैं. और bryophyta को भी हमने क्या कहा था, amphibians of the plant kingdom, remember. ठीक है, now they have a head and a trunk and some also have a tail present. Okay, the moist skin, they have a moist skin without the scales. ठीक है, और दो जनरली या मोस्टली क्या होते हैं, 2 pair of limbs are present. Mostly 2 pair of limbs are present. ठीक है, now the tympanum represents the air. हमारे जो tympanum is a membrane present. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो मेम्ब्रेन होती है जो ईयर में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो टिम्पैनम है वो पूरे ईयर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे. ठीक है, एंड दे हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, जो कि क्या है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. ठीक है, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही इन्वायरमेंट में रहते हैं. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ जब तक अभी स्क्रीनशॉट नोट जो भी करना साथ साथ करते रहिए. ठीक है, बॉडी में क्या है, हेड और ट्रंक भी है और कभी कभी टेल भी प्रेजेंट होती है. दे हैव अ मॉइस्ट स्किन विदाउट द स्केल्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स. ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर एंड दे हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल. ठीक है, दे आर पोइकिलोथर्म्स अगेन, मतलब कोल ब्लडेड. ठीक है, ये भी अपने अंदर का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते. Okay, the alimentary canal, the urinary and the reproductive tracts open into a cloaca which opens to the exterior. सबकी ये क्या है, cloaca क्या है, इसकी सेम ओपनिंग है जो कि फिर फर्दर कहाँ ओपन होती है, to the exterior. ठीक है, now in these animals the respiration occurs by the gills in the larva stage. ठीक है, और जब बड़े हो जाओ तो lungs and स्किन से. लार्वा स्टेज में किससे होगी, गिल्स से, और आगे किससे होगी, लंग्स और स्किन से. ठीक है, नाउ द सेक्सेस आर सेपरेट. ठीक है, द सेक्सेस आर सेपरेट and they have external fertilization and they are oviparous, means they lay eggs outside the body. Okay, and the development is indirect, मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्लोएका है ना, कि ये सिंगल ओपनिंग है जिसमें क्या कर रही है, इन सारी की ही ट्रैक्ट क्या कर रही है, खुल रही है या ओपन हो रही है. ठीक है,
and these are the example of the class amphibia. ठीक है, bufo that is a toad, rana that is a frog, okay, hyla that is a tree frog. You can just write these names, these are easy to remember, right? So you can just write it down. Okay, so now the next class is the reptilia. ठीक है, that is the reptiles. We all know snakes are the most common example of the reptiles. Okay, now they are, जो भी अब हम पढ़ेंगे वो आप snakes को दिमाग में रख के पढ़ो, so that it would be easy to understand, right? They are dry and they have a dry and cornified skin. We haven't probably touched a snake, most of us, ठीक है, लेकिन जब भी हम डिस्कवरी ज्योग्राफी में देखते हैं, दिस इज वेरी क्लियर टू अस कि बहुत स्मूथ तो नहीं होता, ठीक है. तो दे हैव बेसिकली अ ड्राई स्किन, ओके. एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ये जो इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइक द एलिगेटर, ठीक है, ये जो प्रोट्रूबरेंसेस प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूट्स बोल रहे हैं, ठीक है. द प्रोट्रूबरेंसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द this foot of the alligator, these are the scutes. And when we see on this snakes, okay, we can see the scales, okay. तो इनकी dry skin होती है and scutes और scales उसमें क्या होते हैं, present हो सकते हैं, ठीक है. Now the snakes and the lizards shed their scales as skin cast, ठीक है. वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से क्या करते हैं, अपनी स्किन को निकालते हैं. वी ऑल नो दिस बिहेवियर ऑफ द स्नेक एटलीस्ट, है ना. लिजार्ड का तो मे बी मोस्ट लोगों को नहीं पता हो, बट स्नेक्स का वी ऑल नो दैट दे जस्ट शेड देयर स्किन, है ना, ऐसे के ऐसे एज इट इज, ओके. तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट, ठीक है. नाउ दे हैव 2 pairs ऑफ द लिम्स, इफ प्रेजेंट दे हैव 2 pairs, ओके. और इनका लोकोमोशन टाइप क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग टाइप का, रेंगते हुए जाते हैं, ठीक है, चलते नहीं है, बिल्कुल रेंगते हुए जाते हैं, ओके. एंड हेयर ऑल्सो द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, ठीक है. हेयर ऑल्सो द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ओके. तो इनकी स्किन ऐसी होती है, दे शेड देयर स्किन, ओके. इफ द लिम्स आर प्रेजेंट दे आर 2 in pairs, ओके. एंड इनका लोकोमोशन टाइप क्या होता है, क्रॉलिंग टाइप. और यहाँ भी क्या हो रहा है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, ठीक है. दे ऑल्सो हैव अ 3-chambered हार्ट, ओके. एंड जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो पूरा रेप्टिलिया क्लास के जो भी एनिमल्स है, उन सब में तो क्या होता है, 3-chambered हार्ट, दैट इज 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है. बट जो क्रोकोडाइल्स का हार्ट होता है, इट इज 4-chambered जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है. 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, राइट. दे आर ऑल्सो पोइकिलोथर्म्स, दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे आर ऑल्सो द कोल्ड ब्लडेड animals, ठीक है. they have a well developed alimentary canal and respiration occurs by the lungs. जो हमारे structures है वही इनके भी है कि the respiration occurs by the lungs, ठीक है. हार्ट भी क्या है, 4-chambered है अगर अपन क्रोकोडाइल को देखें तो, और they have a well developed alimentary canal also, ठीक है. यहाँ पे भी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी इंटरनल, मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. जो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, दे आर ओविपेरस, ठीक है, मतलब दे विल ले एग, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी. एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब नो लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, कोई लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं है बीच में, ठीक है. You guys can directly take a screenshot, don't wait I won't wait for you to note the things, okay. You guys can directly just take a picture of this, okay. बाकी सब कुछ बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेप्टिलिया, ओके. जो आपको इजीली याद रहे, यू जस्ट राइट इट डाउन, द क्रोकोडाइल्स, द स्नेक्स एक्सेट्रा, ठीक है. जल्दी से
Okay, so let's move on to the last class. This is just for the types of example. This is nothing to, you know, these are types of basically the poisonous and the non poisonous snakes. कोई नहीं पूछने वाला कौन से poisonous होता है कौन से नहीं होते हैं. Anyway, the next class is the aves. ठीक है. Now these are basically, these includes the birds basically, right? They have presence of feathers and beak. ठीक है. They have presence of feathers and the beak. ठीक है. The forelimbs are modified into the wings. The forelimbs are modified into the wings. ये किस में modified है? Wings में. आगे जो जैसे हमारे हाथ होते हैं, इनके जो forelimbs हैं, ठीक है, these are modified into the wings. ठीक है. Again, they also have a dry skin without glands. ठीक है, without glands, except the oil gland at the base of the tail. इनके यहाँ पे इनकी जो बॉडी, जैसे we have so many glands, the sweat gland, the sebaceous gland, right? They do not have any gland except one gland, जो भी कहाँ पे present होता है इनकी tails में, and that is the oil gland. ठीक है. The hind limbs, मतलब पीछे वाले जो पैर हैं, the hind limbs have the scales and are modified for walking, swimming or clasping ट्री ब्रांचेस. ठीक है. यहाँ पे जो इनके हिंड लिम्स है वो किसके लिए मॉडिफाइड है? वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस. राइट. नाउ they have a long, hollow and pneumatic bones. ठीक है. You can see the pneumatic bone, a porous kind of, and मतलब air filled, generally पूरी solid नहीं है. ठीक है. तो they have a long, hollow and pneumatic bones, and they also, here also the tympanum represents the ear. यहाँ पे ऐसा कोई structure नहीं present है. Here the tympanum only represents the ear. ठीक है. They have a 4-chambered heart just like the humans. यहाँ पे सब में क्या है? 4-chambered heart है. 2 auricles, 2 atrias और 2 ventricles. ठीक है. और ये क्या है? होम्योथर्म्स. ठीक है. ये क्या है? होम्योथर्म्स. मतलब they have the ability to regulate their inner body temperature. ठीक है. और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड animals. ठीक है. poikilotherms मतलब cold blooded animals which do not have the ability to regulate the body temperature. ठीक है. and these are the homeotherms which have the ability to control the body temperature. ठीक है. the third is the digestive tract has additional chambers. ठीक है. that is the crop and gizzard. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है हमारा ह्यूमंस का, यू ऑल गाइज नो. ठीक है. तो यहाँ पे जो है उनमें क्या होता है? 2 एडिशनल चेम्बर्स है. दैट इज द क्रॉप एंड द गिजार्ड. ठीक है. Here the double respiration occurs, that is air sacs are connected to the lungs. ठीक है. the air sacs are connected to the lungs. ठीक है. दोनों टाइप क्या प्रेजेंट है? एयर सैक्स भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? लंग भी प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड वी ऑल नो बर्ड्स क्या करती हैं? एग्स देती हैं. ठीक है. तो दीज आर ओविपेरस एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. कोई लार्वा स्टेज नहीं होती बीच में. ठीक है. यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस एंड द डायरेक्ट development. Okay. double fertilization is an important feature. Okay. These are the example of the aves, the crow, the pigeon, etc. है ना. You can just take a picture. Corvus, columba, है ना, parrot, Psittacula. Okay. चलें आगे. जो भी आपको इजी लगे आप लिख के आना एज एन एग्जाम्पल. है ना. सारे लिखें, जरूरी नहीं है. जो कुछ भी याद रह जाए आप नाम लिखो उसका. नाउ द क्लास मैमेलिया. ठीक है. दे हैव द प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. जो भी मैमल्स हैं, मैमेलिया है, उनमें क्या होता है? मैमरी ग्लैंड्स
प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है. दे हैव स्किन विद हेयर, ठीक है, दे हैव स्किन विद हेयर, ओके. 2 पेयर ऑफ लिम्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, burrowing, swimming और flying. 2 pair of limbs होते हैं, ठीक है, सबके पास, which helps in the walking, running, climbing, etc. ठीक है. They have presence of the external ear. इतने टाइम से जो tympanic membrane थी, it was only representing the ear, but here the external ear is present, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ear पिन्ने, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ear पिन्ना या ear पिन्ने, ठीक है. They have a 4-chambered heart and are homeotherms, means they have the ability to regulate their own temperature, their own body temperature, ठीक है. Mammary glands होते हैं, skin पे hair होते हैं, 2 pair of limbs होते हैं, external ear pinnas होते हैं, 4-chambered heart होता है, and these are homeotherms, ठीक है. They have a well developed alimentary canal, okay, and the dentition is heterodont, thecodont and the diphyodont, ठीक है. ये सब हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है. द रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ओके. सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. सेक्सेस सेपरेट होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. These are viviparous, means they directly give birth to the baby, है ना. वो eggs नहीं देते, वो directly birth देते हैं to the baby, ठीक है. Except the platypus and the echidna, ठीक है. Except these two, बाकी सब क्या होते हैं, viviparous होते हैं, ठीक है. एंड अगेन द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, टाइप, ठीक है. इनमें कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, कोई लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, ओके. दीज आर द एग्जाम्पल, यू कैन राइट द प्लैटिपस, है ना. मैक्रोपस, दैट इज द कैंगरू. मकाका, दैट इज द मंकी, है ना. तो दीज आर द एग्जाम्पल. एक्चुअली प्लैटिपस को रहने दो, जो इजी एग्जाम्पल है जो आपको याद रहे वो लिखो, ठीक है. चले आगे. कैमिलस, रैटस एक्सेट्रा, जो भी आपको इजी लगे वो आप याद रखो, है ना. These are just the examples, okay. And this is finally the end of this chapter, ठीक है. We have discussed 11 phylums in this animal kingdom, okay. Don't get scared or don't be like कि इतना जल्दी जल्दी हो गया या हो गया, ठीक है. There was not much things to explain over here, okay. जो थी वो मैंने कुछ जो terminologies थी that I have explained already, ठीक है. These you will have to remember, है ना. और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास. जो मैमल्स वगैरह हैं वो हमने देखे हैं, वो हमको याद रह जाता है, लेकिन द थिंग्स दैट वी हैव नॉट रियली, वी डोंट रियली सी और इन आवर डे टू डे लाइफ, या हम उनको ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं तो नहीं होती याद अच्छे से, ठीक है. लेकिन यू गाइज जस्ट रीड इट मोर एंड मोर, ठीक है. मेक अ चार्ट ऑफ दिस, ओके. एंड उसके बाद आप उसको पढ़ने की कोशिश करो. यू गाइज विल रिमेंबर थिंग्स, है ना. धीरे धीरे करके याद होने लग जाएगी. सो नाउ दिस बेसिकली एंड्स आर दिस चैप्टर नंबर 4, दैट इज द एनिमल किंगडम. थैंक यू.